Hello friends, this is Dr. Ravi Sani. Today we are going to discuss about human respiratory system. So we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to a nasal chamber. Through the nasal passage, the nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is the common passage for food and air. The pharynx opens through the larynx region into the trachea. So जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं वो नेजल चेम्बर में ओपन होते हैं और जो नेजल चेम्बर है वो फिर नेक्स्ट फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पैसेज है जहाँ पे फूड और एयर दोनों ही पास होते हैं और जो फेरिंग्स है देन अगेन इट opens into the larynx region into the trachea. Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called the sound box. जो larynx है because it helps in प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जो भी हम व्हाट वी से वो जो भी हम शब्द बोलते हैं जो भी हम वॉइस जो भी हम डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं वो सारे के सारे साउंड्स विद द हेल्प ऑफ लैरिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स बिकॉज लैरिंग्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स और उनके वाइब्रेशन से डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। Now, during swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. जो ग्लॉटिस है वो एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से कवर होता है। उस लिड को हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ड्यूरिंग जब हम खाना खाते हैं देन दैट एपिग्लॉटिस कवर्ड द glottis, so it prevents the entry of food into the larynx. Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi. Initially trachea एक straight tube की तरह enter करती है till the mid-thoracic cavity. उसके बाद में फिफ्थ thoracic vertebra के लेवल पे वो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। Each bronchi undergoes repeated divisions to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles, ending up in a very thin terminal bronchioles. So जो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड होती है सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में एंड फाइनली जो ब्रोंक्यूल्स है वो लास्ट ब्रांचिंग होती है। द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये जो भी जो ब्रोंकाई के जो डिविजन्स हैं ये सभी डिविजन्स जो है एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है उनके थ्रू सपोर्टेड होते हैं। ईच terminal bronchial gives rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structures called alveoli. So जो ब्रोंक्यूल्स है फाइनली वो जो है एल्वेलाई में टर्मिनेट होते हैं और जो एल्वेलाई है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइज द लंग्स। We have two lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them. It reduces friction on the lungs surface. So in human beings we have two lungs, right and left. Both lungs are covered by a double layered pleura. दो लेयर में होती है प्लूरा और इस प्लूरा दोनों जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इनके बीच में एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। Now, this is the diagrammatic view of human respiratory system. Here we can see right and left lung. जो starting में हम देखें, here it is a epiglottis. This epiglottis covers the larynx, जो कि sound produce करता है. Then there is a straight tube called trachea, and then at the level of fifth thoracic vertebra, it divides into the right and the left primary bronchi. Here it is covered by incomplete cartilaginous rings. Then further, these bronchi are divided into bronchioles, and at the last, there are bag-like structures called alveoli.
which are responsible for exchange of gases. Both these lungs are covered by the pleural membranes, and in between these pleural membranes there is a fluid which is called pleural fluid, which prevents friction or which reduces the friction. Below there is a diaphragm which helps in respiration. Now the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, where the alveoli and the ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. So जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वहां तक तो जो है इट इज कॉल्ड कंडक्टिंग पार्ट, जहां पे एयर का पैसेज होता है. बट फ्रॉम ब्रोंक्यूल्स जो एल्वेलाई है इट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई, clears it from foreign particles, humidifies and also brings the air to body temperature. तो जो कंडक्टिंग पार्ट है वो एयर को एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई तक लेके आता है, उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उनको क्लियर करता है. जो एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो काफ़ी ड्राई होती है, तो जब वो लंग्स में एंटर करती है देन इट बिकम्स ह्यूमिडिफाई एंड ब्रिंग्स द एयर बॉडी टू द टेम्परेचर. बिकॉज बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो व्हेन इट एंटर्स इनटू द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द लंग्स द टेम्परेचर इक्वल्स टू द बॉडी टेम्परेचर. एक्सचेंज पार्ट जो है इट इज अ साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. सो जो लंग्स के हमने दो पार्ट डील किए, फर्स्ट वन इज द कंडक्टिंग पार्ट जो कि एयर को एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वेलाई तक लेके आता है. द नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एक्सचेंज पार्ट, जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. द लंग्स आर सिचुएटेड इन द thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. So the lungs, the right and the left lung are situated in the thoracic chamber, जो कि एक airtight chamber होता है, because इसमें इनहेल और एक्सेल प्रोसेस होना होता है. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and on the lower side by the dome-shaped diaphragm. Dorsally means towards the backward, जो पीछे की तरफ है, जो vertebral column है it is covered by vertebral column in that thoracic chamber. और जो ventrally means जो फॉरवर्ड साइड में जो है sternum जो है वो thoracic chamber को कवर करती है. लेटरल साइड में जो दोनों तरफ से जो रिब्स आती हैं वो, और लोअर साइड में जो डायफ्राम है वो डोम शेप में होता है, वो thoracic चैम्बर को कवर करता है. इससे एक एयर टाइट चैम्बर बनता है जो कि इनहेल और एक्सेल प्रोसेस में हेल्प करता है. द anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity. जैसे ही thorax जो thoracic cavity है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो लंग कैविटी है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पल्मोनरी कैविटी, उसमें भी चेंजेस होंगे. जैसे कि आई हैव मेंशन कि जो थोरेसिक चैम्बर है वो एक एयरटाइट सील होता है, तो उस थोरेसिक कैविटी में चेंजेस जो है वो डायरेक्टली लंग कैविटी और पल्मोनरी कैविटी को अफेक्ट करते हैं. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. So thoracic कैविटी में चेंजेस होने की वजह से पल्मोनरी कैविटी में चेंजेस हुए जिससे कि ब्रीदिंग पॉसिबल हुआ. तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. द फर्स्ट इज द ब्रीदिंग ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट. तो ब्रीदिंग में इनहेल और एक्सेल दो प्रोसेस हुए. इनहेल में हमने ऑक्सीजन को जो है इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हमने इनहेल किया लंग्स में, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, स्पेसिफिकली जो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनमें
CO2 जो है वो बॉडी से बाहर निकलती है, द एक्सेल प्रोसेस। तो सेकेंड वन इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। जो ब्रोंकाई थे उनका जो सबसे लास्ट वाला टर्मिनल पार्ट था, इट्स कॉल्ड एल्वेलाई, वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज हुआ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ऑक्सीजन के केस में तो वो एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन जो लंग्स में एंटर हुई उसको टिश्यूज या सेल्स तक कैरी करता है। जो CO2 है उसको टिश्यूज या सेल से लेके लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है। इन केस ऑफ लंग्स वो एक्सेल होके बाहर निकल जाती है। Diffusion of oxygen and CO2 between blood and tissues, utilization of oxygen by the cells for catabolic reactions, and resultant release of carbon dioxide, which I have already mentioned.